page 122 and statement is two angles of a triangle are 30 degrees and 80 degrees. Find the third angle. आपको इस ट्राइंगल के दो एंगल्स के बारे में गिवन है. दैट मींस जो दोनों एंगल है उनका मेजर गिवन है. Suppose this is a triangle and you are given that one angle measures 80 degree and other is 30. Find third angle. Okay. So what you will do? You can write the angle 1, 2, 3 or you can write x, y, z. Okay. I am writing angle 1, angle 2 and this is angle 3. Okay. Now we know sum of angles of a triangle is 180 degree. Now one angle is 80 degree, another is 30 degree, and third angle I don't know, so I can write angle 3 or I can write x. चाहे आप x लिख लो या इसका angle 3 लिख लो, both ways से कर सकते हैं. You find out करिए this 110 angle 3 180. You can shift 110 on the other side and you get angle 3 as 80 degree. Amandeep ma'am, someone's mic is on. Kindly mute that child. Second question, one of the angle of a triangle is 80 degree, other two angles are equal. Find the measure of other two angles. अब second question में आपको क्या given है? Question number 2. In one triangle, one angle is having measure 80 degrees and another two angles, जो बाकी दो angles है वो equal है, मतलब दोनों बराबर है. ठीक है? जितना measure इसका है उतना ही measure इसका है. हम सपोज कर लेते हैं दोनों x और x. अगर मैं x और y लिख दूंगी वो अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मेजर सेम है, इसलिए दोनों का x x लिख दिया. आप एंगल 1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ we know again sum of angles of a triangle is 180 degree and angle, so when you write it 1 2 3, angle 1 plus 2 plus 3 should be 180 degrees. Here angle 1 is 80, angle 2 और 3 दोनों equal है. मैंने suppose कर लिया that both are equal to x. So I will write x and x here 180. Now x and x 1x that is it is 2x is equal to 180. I can shift this 80 on the other side, so it will be 2x. 180 minus 80, x is equal to 100. Now here 2 is multiplied with x, so I will shift that 2 and x is equal to 50 degrees. तो ये दोनों जो अननोन एंगल्स है जो आपको नहीं पता जो बराबर थे उसकी वैल्यू मिलती है 50. दैट मींस ये भी 50 है, दिस इज आल्सो 50. तो अब आपके पास x और x का मेजर 50 50 आ गया. आप दोनों तीनों को ऐड करके देखो सम 180 बनेगा. 50 50 100 plus 80 that is 180 degrees. Okay, now is question number 3. What is the statement? The three angles of a triangle are in ratio 1:2 ratio 2:1. Find angle of the triangle. Classify triangle in two different ways. और आपने ये भी बताना है उस triangle को क्या नाम दोगे, साइड्स के बेसिस पे भी और एंगल्स के बेसिस पे भी. अब इसमें आपको तीनों एंगल्स है वो रेशियो फॉर्म में पता है. दैट मींस आपको ये नहीं पता कि एंगल 1 जो है या 2 है या 3 है कितने मेजर है, बट उनकी रेशियो पता है. ओके, तो इसको मैं ABC भी दे सकती हूँ, इसको मैं मैट्रिक्स भी दे सकती हूँ, x y z भी दे सकती हूँ. ठीक है. सो गिवन रेशियो ऑफ एंगल्स, जो रेशियो एंगल्स की दैट इज 1:2:1. मतलब पहला एंगल 1x, दूसरा एंगल 2x और थर्ड एंगल 1x. जब रेशियो में गिवन होगा तो आप उसके साथ वेरिएबल लगा के लिखोगे जब एंगल्स को लिखना होगा. लाइक सो angle A I will write 1x, B is 2x, angle C is 3x. ये मैं सारे क्वेश्चन अलग अलग वे से कर रही हूँ. पहली बार मैंने 1 और 2 एंगल लिख किया था, इसमें मैंने x यूज किया है, इसमें मैंने एंगल A B C यूज किया है. आप किसी भी वे से अपने क्वेश्चंस कर सकते हो. आप इसका एंगल 1 2 और 3 भी
1x. फर्स्ट एंगल आई एम सपोजिंग दिस इज 1x. जब ये रेशियो गिवन होती है तो आप अपनी तरफ से कॉमन मल्टीपल सपोज कर लेते हो x और उसको मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ, क्योंकि रेशियो फॉर्म में गिवन है, इक्वल टू फॉर्म में नहीं गिवन दैट एंगल 1 is 1, ये नहीं गिवन. यहाँ लिखा है एंगल 1 b, एंगल a b and c are in ratio 1 to 1. दैट मींस पहला एंगल आप 1x ले सकते हो, दूसरा 2x, तीसरा जो है वो भी 1x. So in the one B or A, B or C here. Now again we will write and use angle sum property. We know that sum of angles of a triangle is equal to 180 degrees. Now angles are angle A, B and C. और तीनों को सम करके कितना चाहिए 180. अब A की वैल्यू है 1x, B is equal to 2x and C is again 1x. So that square करके वो 1, 2 and 1. This is 4x. That means 4x is equal to 180 degrees. X is equal to 180 over 4. That is equal to 45 degrees. अब ये जो वैल्यू है ये x दिया है. ओके, ये x मिला है. अब आपको लिखना है अगर A B C लिखना है क्योंकि आपको एक्चुअल में ये एंगल्स चाहिए. A, B और C. ये एंगल और ये एंगल. Now angle A will be equal to 1x. That means जो भी x का measure है उसको 1 से multiply करो. That is 45 degrees. Angle B कैसे मिलेगा? When you multiply by 2. 2 into 45 that is 90 degrees. And angle C will be again 1x. That means 1 into 45 that is 45 degrees. So hence you can find the measure of angles when you are given ratio. थर्ड क्वेश्चन पे स्टार लगा लो बिकॉज रेशियो वाले क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं आए. दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अभी अगर वहां एग्जाम में लिख के आएगा जो एंगल्स की रेशियो है वो 3, 2 और 1 है तो क्या आएंगे? एनीबडी हु कैन टेल? अगर रेशियो दी हो 3, 2, 1 तो ए बी सी में क्या लिखोगे? Anybody who can tell me, kindly raise a hand so that ma'am can unmute you. अगर 3:2:1 लिखा हो, so what will be the measure of angles? 3:2:1. तो ये A B C क्या बनेगी? Yes. Amandeep ma'am, kindly unmute Tejas or Manveer, any student. Yes, Ranjita, you are right. Angle A will be 3x. Yes, beta. Yes, I will repeat, but who will answer me first? Yes, Manya. Yes, Manveer. ओके, राइट राइट. इनमें से आप कोई भी ए बी सी ले सकते हो. ये नहीं है कि पहला ए होगा दूसरा बी तीसरा सी, ऐसे नहीं है. जैसे आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आंसर फॉर्म में लिखोगे. अगर यहाँ आपने ए के सामने 1x लिखा है तो आंसर में भी ए के सामने 1x होना चाहिए. कई लोग क्या करते हैं, ए के सामने 1x लिखा होता है, यहाँ जब आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां लिख देते हैं a इक्वल टू 2x. तो ये अलग नहीं होना चाहिए. जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर लिया 1 2x और 1x 2x 1x, वैसे ही यहाँ लेना है 1x 2x 1x. इज इट क्लियर? तेजस, आई एम टेलिंग यू दैट अगर आपको रेशियो फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तब आपने क्या करना है, आपने कॉमन मल्टीपल x सपोज कर लेना है, उसको आपने तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके एंगल्स के सामने लिख देना है. Like here, angle 1A will be 1x, angle B will be 2x and angle C will be 1x. Okay? And then आपको पता है एडिशन करनी है x की वैल्यू फाइंड करो. So all of you who are writing the comments are correct. Let us move further for the new topic. ये तो था अभी आपका एंगल सम प्रॉपर्टी के क्वेश्चन. अब हम एक और प्रॉपर्टी करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर का नेम ही है वो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है. तो आप ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी करने वाले हो. कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स देखना है. स्पेशल ट्रायंगल्स मींस यस शिप्रा. अभी भी स्लो आ रही है. अच्छा, जब बोर्ड के पास जाती हूँ. ओके ओके बेटे, मैं थोड़ा सा और लाउड हो जाऊंगी. ओके, ब्लर नहीं है, बिल्कुल ठीक है. हाँ मैम,
मैम प्लीज इनको म्यूट कर दो बच्चों को। अमन मैम काइंडली म्यूट द स्टूडेंट्स। नाउ टू स्पेशल ट्राइंगल्स, हम टू स्पेशल ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं और उनकी प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। टू स्पेशल ट्राइंगल्स, ओके। तो पहला जो स्पेशल ट्राइंगल है हमको ले रहे हैं आइसोसेलेस। अगर जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? आइसोसेलेस में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जिनमें टू साइड्स इक्वल हो। यहाँ इस क्वेश्चन में भी पूछा था उन्होंने, इसका नेम दो। सो व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? इसका नेम होगा, आपका क्वेश्चन नेम होगा है इसका ऑन बेसिस ऑफ एंगल। इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल है 90 का बनता है। राइट एंगल triangle and also it will be isosceles triangle। आइसोसेलेस कैसे आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से जो अपन कर रहे हैं। 90 आ गया तो आप राइट एंगल लिखोगे। नाउ टू स्पेशल ट्रायंगल्स वी आर गोइंग टू डू टुडे। फर्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है जो बात पहले से पढ़ रहे हो फोर्थ क्लास से? टू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। आइसोसेलेस की टू साइड्स जो है वो सेम है, लाइक दिस। ओके, अगर मैं इसको नेम दे दूं ABC, then AB will be equal to AC। That means first इसका जो point है that is two sides are equal या same length। सेकंड क्या है? that opposite angles are equal। अब इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि न्यू है आपके लिए। जिस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हो जाएं, लाइक यहाँ पे उस ट्राइंगल में उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स हैं। लाइक इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? इसके सामने देखो, दिस इज एंगल सी। इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी। तो ये बी और सी भी इक्वल होंगे। ओके, जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। लाइक यहाँ इस साइड के सामने बन रहा है सी, इस साइड के सामने बन रहा है एंगल बी। ओके, सो व्हाट इज द राइट? बेस एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। Opposite to equal sides are equal। तो उसके सामने के एंगल्स है वो इक्वल होंगे। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ, जरूरी नहीं है आइसोसेलेस कैसा हो। आइसोसेलेस कैन बी लाइक दिस। ओके, ये टू साइड्स इक्वल है। अब इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये इक्वल होगा। आइसोसेलेस कैन बी ऑफ दिस टाइप, ये दोनों इक्वल है, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो जैसे जैसे इसकी शेप रेडी करोगे आप ध्यान रखना कि मुझे इस साइड से सामने बन रहा है ये, इसके सामने बन रहा है ये, तो मुझे ये दोनों एंगल्स लेने हैं। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ बेस वाले एंगल का। बेस का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये ट्रायंगल मूव करेगा वैसे वैसे इसका बेस भी मूव करता रहेगा। ठीक है, बेस वो चीज है जिसके ऊपर ये दोनों इक्वल लाइंस खड़ी हैं। ठीक है, बेस का यहाँ क्या मीनिंग है? जहां पे ये दोनों इक्वल लाइंस खड़ी हैं तो ये बेस है। अगर ये साइड्स इक्वल है तो दिस इज द बेस। यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है तो दिस इज द बेस। ऐसे ही अगर ये टू साइड्स इक्वल है तो यहाँ बेस है। ये जरूरी नहीं कि नीचे ही होगा, बेस ऊपर भी लिखो मिल गया इसका। तो अगर ये बेस है, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो बेस के साथ जो एंगल बन रहे हैं ये वाले इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, किसके ऊपर बनेंगे दोनों साइड्स? इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर। दैट मींस इसके ऊपर जो दोनों एंगल्स बने होंगे वो इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? नाउ इस सेकंड प्रॉपर्टी। और दूसरा जो स्पेशल ट्रायंगल है उसका नेम क्या है? सेकंड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है, इक्विलैटरल कौन सा होता है? वेयर ऑल साइड्स आर, ठीक है, जहां तीनों साइड्स। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में क्या होगा? तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और उस ट्रायंगल में जो एंगल्स बन रहे हैं वो सारे 60 के होंगे। सारे के सारे एंगल 60 के होंगे। तो फर्स्ट थिंग आपको पता ही है, ऑल साइड्स इक्वल एंड सेकंड इज ऑल
measure 60 degrees। तीनों ही 60 के होंगे क्योंकि इन दोनों के सामने ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल होने पड़ेंगे, तीनों ही इक्वल है। 180 का सम आपने बनाना है, हम तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो कितने कितने के होंगे? 60 60 60, so that adds up to 180। 60 और 60 करोगे 120 और अनदर 60 ऐड कर दो, इट इज 180। सो आप ये दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ये आपके फर्दर एक्सरसाइज में काम आने वाली है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। इक्विलेटर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यू नो दैट। बट इसकी प्रॉपर्टी एंगल्स के बेस पे क्या है कि जिस लाइन के ऊपर ये दोनों इक्वल साइड्स खड़ी हैं वो बेस लाइन है, उसके ऊपर जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। बेस से देख लो, यहाँ ये साइड के सामने ये साइड के सामने ये, तो ये बी और सी इक्वल होंगे। और अगर इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाए तो उसके तीनों एंगल्स का मेजर कितना होता है? 60 degrees, so that it adds up to 180 degrees. Now we are going to try these of page 123. Let us move further. Page 123. ओके, अब इसमें मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रही हूँ। चलो पहले फर्स्ट ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मार्किंग्स लगी हुई है कि कौन से टू साइड्स इक्वल है। नोटिस फाइंड x इक्वल है, फर्स्ट पार्ट डायग्राम इज लाइक दिस। नाउ बी केयरफुल, अगर आपकी ट्रायंगल बनी है तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे दो लाइंस लगी है, जहाँ पे मार्क हुआ है ना दैट मींस वो इक्वल है, वहां पे जरूरी नहीं लिख के आएगा कि ये साइड इसकी इक्वल है। अब आपको यहाँ लिखा है 40 और इधर लिखा है x, so can you tell me what is the value of x here? Raman ma'am, can you unmute one child? Yes, Manya is right. You can write in the chat box otherwise. Yes बेटे 40। Why? Because ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसके ऑपोजिट के इसके ऑपोजिट के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। Let us name this angle 1, this angle 2 as triangle is isosceles, so angle 1 will be equal to angle 2। अब यहाँ 1 की वैल्यू पता है तो 2 की क्या होगी? So angle 1 is 40, तो 2 है यहाँ पे x, that means x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ओके, आप चिन्ह आगे लिख सकते हो, so angle x is equal to 40 डिग्री। नेक्स्ट इज, अब यहाँ कुछ ट्रायंगल जो बना है, स्टॉप राइटिंग द कमेंट्स, अदरवाइज मोर विल नॉट बी विजिबल टू द रिकॉर्डिंग। स्टॉप राइटिंग द कमेंट्स, स्टॉप इट, वेरी गुड। यस बेटा, हाँ जी 45 दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो दो साइड्स इक्वल वाला ट्रायंगल, यही प्रॉपर्टी मैंने कहा था ना अभी। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा आइसोसेलेस कैसे आया। जब दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो आइसोसेलेस बन जाएगा। ओके, यस, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी, अगर साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, बोथ वेज चलता है। स्टॉप राइटिंग बेटे कमेंट। सेकंड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x मेंशन है, this is 45, this angle is to be find out, another angle आपने फाइंड करना है, ठीक है। और मार्किंग लगी है ये दो लाइंस, ओके, x फाइंड करना है। अब ये देखो कौन से जो एंगल्स है, यस बेटे इट इज राइट, डोंट राइट द कमेंट्स बेटे, रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट राइट द कमेंट्स नाउ। अब ये दो अपोजिट साइड्स हैं, इनके सामने एंगल देखो कौन सा बन रहा है, अगर नेम इट, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। अब
ये लाइन के सामने है, ये एंगल इस साइड के सामने है, ये एंगल ओके। जिस लाइन पे ये दोनों खड़ी है वो बेस लाइन हो गई, बेस लाइन है ये। अब इस बेस लाइन पे दो एंगल्स कौन से कम है, एंगल 1 और एंगल 2। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, एंगल as triangle is isosceles. So angle 1 is equal to angle 2. 1 और 2 equal होंगे. 2 is 45 तो 1 भी कितना हो जाएगा? 1 is also 45. अब एक ट्रायंगल में दो एंगल्स मिल चुके हैं, थर्ड एंगल निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके. ओके, थर्ड एंगल we will find using angle sum property. This is 45. Okay. This is x भी आपको फाइंड करना है. Here is 1, this is angle 2. Okay, now आपको x फाइंड करना है. So what we will write now? Part 2 है ये क्वेश्चन का. फर्स्ट पार्ट में आपने एंगल 1 फाइंड किया. Now using angle sum property. अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का जो मेजर है वो 180 होना चाहिए. दैट मींस 1 plus 2 plus x. इसका रेंज 1, इसका 2, इसका x. तो 3 भी लिख सकते हो. तो this is equal to 180 degrees. Now 1 का मेजर आपको पता है 45. 2 is also 45. Now we can find x. How? We will add this and shift on another side. So it will be 180 minus 90. 90. तो इसका मेजर आ गया 90 डिग्री. इज इट क्लियर? समझ गए बेटा? इसमें आपने 1 और 2 दोनों देख लिया है, 45 है. थर्ड एंगल x चाहिए तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो. 45 45 180 में से ये दोनों माइनस कर दो तो ये क्या बच गया बाकी 90. ओके, नाउ इज third question you will do yourself. Fourth you will do, fifth you will do, sixth you will do. मैम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 7, 8 and 9. अब मैम आपको 7th पार्ट करवा रहे हैं. Seventh part and the diagram is like this. Here it is written 120 degrees. Okay, ये दोनों इक्वल बनाई हुई है and this is angle to be found out. ये है एंगल x. अभी आप कैसे चलोगे? अगर आप यहाँ लीनियर पेयर पूरा करो, ये देखो एक लाइन में तो 2 एंगल, एक तरफ एंगल पता है, दूसरा एंगल कैसे आता है लीनियर पेयर से 180 से माइनस करके. तो अगर मैं यहाँ ये एंगल फाइंड करूँ इसको एक मान दे दूँ as इसको ले दूँ दे रही है 1 and angle 2 for a linear pair. Linear pair बना रहे हैं. So 1 plus 2 will be 180 and 1 plus 120 is 180. Angle 1 is equal to 180 minus 120, 60 degrees. आपको ये 1 मिल गया 60. ठीक है, इसका मेजर आ गया 60 और आपको फाइंड करना है x. ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये, दैट मींस इसका एंगल का मेजर भी कितना आ गया 60 डिग्री. तो इसको एंगल p लिख लेते हैं. नाउ ट्रायंगल is isosceles. Triangle isosceles है. So angle 1 will be equal to angle 3. 1 का मेजर आपको पता है 60, तो angle 3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री. ओके, तो दो प्रॉपर्टीज आपने इसमें यूज की. पहला है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में आपको एक लाइन के ऊपर अगर 1 एंगल दिया हो एक तरफ, दूसरा मिसिंग हो तो आप उसको 180 से माइनस करके फाइंड कर सकते हो. लीनियर पेयर से आपने ये साथ वाला एंगल निकाल लिया, दैट इज 60 डिग्रीज.
अब ये 60 इसके सामने वाला ब्लैंक है जिसको आपने फाइंड करना है, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, इसके सामने ये और इसके सामने ये बेस एंगल्स हैं दोनों। ओके, तो अब ये बेस एंगल्स में से एक पता लग गया तो दूसरा भी सेम होगा बिकॉज योर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आई होप अप टू दिस इट इज क्लियर। Now let us move further for part 8. Eighth part, and diagram is like this. I think all of you can guess what is the answer for asked question. यहाँ पे x जो कि missing है, कि और ये two sides equal है. Okay, two sides equal and those are given to you. You can write your answer in the chat box. 110 is given, so which property we will use first? पहले आप सबसे कौन सी property use करोगे? Which property are you going to use? This angle is given 110. अब कोई है जिससे ये मिल जाए आपको? The named property which you are going to use. Exterior okay. एक्सटीरियर नहीं लगेगी बिकॉज आपको ये नहीं पता। ओके कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल से हो जाएगा। वर्टिकल ऑपोजिट नहीं लगेगी, वो टू लाइन जब कट होती हैं तो लगती है लीनियर पेयर। यस लीनियर पेयर से हो जाएगा। नाउ यू स्टॉप राइटिंग, अब स्टॉप कर दो राइटिंग, स्टॉप राइटिंग द कमेंट्स। लीनियर पेयर देखो, एक बच्चे ने लिखा कि ये किससे हो जाएगा लीनियर पेयर से, और एक ने लिखा है कि ये किससे हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। देखो दोनों ठीक है। अगर आप लीनियर पेयर से चलते हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल पता है, दूसरा आपको मिल जाएगा 7। ठीक, ये 70 मिल गया। ओके, अब आपके पास ये 70 है, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये x है तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है। अब x plus 70 लगाओ और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो। दूसरा बच्चा ने बोला है इस ट्रायंगल के अंदर हम एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज 110। अगर ये एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, ये भी x है ये भी x है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। तो अगर एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी आप यूज करते हो, दोनों इक्वल है और इन दोनों का सम इक्वल होगा 110। दैट मींस x plus x will be equal to 110। 2x is 110, x is equal to 55। दोनों वे से होगा, दोनों वे से सेम आंसर आएगा। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस। बोथ वे से आंसर राइट आएगा, दोनों से इसका 55 डिग्री ही आएगा। ओके, मैं नेम लिखती हूं एंगल 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4। Here angle 3 and 4 are forming लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी 110। इसमें से 4 का मेजर कर 180। सो इसमें से आपको 4 का मेजर पता है 110, इसकी शिफ्टिंग करवा दो। एंगल 3 विल बी 180 minus 110, that means is 70। अब आपको 3 मिल गया 70। ओके, अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। So what you can write here? Now triangle is isosceles, ये isosceles है। So angle 1 will be equal to angle 2। That means ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों किसके इक्वल है x के। That means 1 is x and also 2 is x। Using angle sum property, angle sum property का यूज करिए। That means तीनों का मेजर 1 plus 2 plus 3। Angle 1 plus 2 plus 3 will be 180। इसमें से 1 और 2 दोनों x है, but 3 कितना है 70 is equal to 180 degrees। 2x is equal to
180 minus 70, x is equal to 55 degrees. That means ये भी 55, ये भी 55, दोनों को ऐड करो बाहर 110 है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपको शो हो जाएगा कि आपका आंसर राइट था। अदरवाइज 155 55 ऐड करो 110, 110 plus 70 is 180 degrees. Okay, now is the last part. Other parts you will complete yourself.